ruling Sikkim Krantikari Morcha has set up 3 separate committees to intensively work towards resolving 3 pending issues of the state. Well, this decision to form the 3 committees was taken in a meeting of the SKM Legislature Party, chaired by Chief Minister Prem Singh Tamang on Tuesday. Talking to Northeast Live, SKM spokesperson cum Chief Minister's Political Secretary Jacob Culling has informed that these 3 committees will look after the Assembly seat reservation for Limbu Tamang communities according to the tribal status for the 12 left-out communities and bringing the 17th Karmapa Lama to Sikkim. Now, regarding the committees formed, the SKM spokesperson has informed that Lok Sabha MP Indra Hang Suba shall be heading the committee on Limbu Tamang Assembly seat demand, and the members of which are to be appointed expeditiously, after which a meeting would be held with the Chief Minister. The committee would then maintain contact with the centre for reaching the seat issue to its conclusion. Similarly, Chief Minister's political advisor T.N. Dhakal has been appointed as the chairperson of committee on according to the tribal status for the 12 left-out Nepali communities of Sikkim. After finalization of the committee members, a meeting with the Chief Minister will be convened, which will eventually convey it to the centre to reach the demand to its conclusion. Meanwhile, Culling also mentioned that funds for bringing back the Karmapa Lama Ogyen Trinley Dorji to Sikkim had already been allocated in the last state budget, but it could not materialize due to the pandemic. And here Culling informed that a committee under the chairmanship of Minister Sonam Lama has been formed. कल का जो विधायक दल एसकेएम पार्टी का सभा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक किस्म से एक ऐतिहासिक भी था, इसलिए क्योंकि सरकार होने के बाद सरकारी तौर पे जो सिक्किम का बहुत लंबे अरसे से लंबित जो राजनीतिक मांगे हैं केंद्र सरकार से वो पूरा होना है। उसके सरकारी तौर पे तो काम हो रहा था, पर एक कमेटी बना के उन पर काम करना अभी बाकी था। कल का विधायक दल का मीटिंग ने विशेष लिम्बू तामाङ के विधानसभा में सीट आरक्षण के लिए हमारा लोकसभा सांसद श्री इंद्र हाङ सुब्बा के अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन किया है। ये समिति राज्य सरकार और यहाँ के संपूर्ण स्टेक होल्डर्स और केंद्र सरकार को संपर्क में करके किस तरह से विधानसभा में सीट आरक्षण दिलाना है ये 2 जाति को, उस ऊपर चूड़ांत काम करेगा। और इसी के साथ जो बहुत पुराने डिमांड है हम सिक्किम का जनता के, जो लेफ्ट आउट कम्युनिटी है ट्राइबल होने से 12 कम्युनिटी, वो 12 कम्युनिटी को ट्राइबल बनाने के लिए भी संपूर्ण दस्तावेज के साथ साथ कानूनी पहल और दूसरे सभी सहभागियों के साथ दिल्ली जाके बात करने के लिए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री टी.एन. ढकाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय शीर्ष समिति गठन किया है। और तीसरा में जो सिक्किम का जो विशेष बुद्धिस्ट समुदाय और सिक्किम का सारा समुदाय का एक चाहना है कि पूजनीय कर्मकपा ओगेन थिनले दोर्जी का सिक्किम एक बार आगमन हो और सभी भक्तों को उनसे आशीर्वाद मिले। केंद्र सरकार से इस मामले में सभी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो चुका है, पर कोविड-19 के कारण और पूजनीय कर्मकपा अभी विदेश में होने के कारण अभी तक सिक्किम आगमन पूरा नहीं हो पाया है। इसको जितना जल्दी हो सके सिक्किम में उनका आगमन को पूरा करने के लिए माननीय धर्म विभाग के मंत्री श्री सोनाम लामा के अध्यक्ष में एक कमेटी गठन किया है। ये कमेटी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कर्मकपा जी से संपर्क करके उनके आगमन को सुनिश्चित करेगा। And in the same Sikkim Legislature Party meeting, it was also decided that all MLAs shall be present in their government offices 4 days a week and 2 days in their respective constituencies and party offices to meet the local public and party workers. The MLAs and concerned ministers are to regularly monitor developmental and infrastructure projects in their respective constituencies while making all-out efforts to ensure timely completion of the developmental projects. विशेष मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी विधायकों को जनता के काम करने के लिए अग्रसर रहने का निर्देशन दिया है और जो विकास का काम अभी समष्टि में हो रहा है जिसके लिए विधानसभा ने बजट आवंटित किया है वो काम समय पे हो सके। अगर किसी कारण से भी वो विलंब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी विधायकों और मंत्री को अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने विभाग के काम का
लगातार निरीक्षण करने के लिए आदेश दिया है और सभी विधायक और मंत्री सप्ताह में 4 बार अनिवार्य रूप से कार्यालय में रह के कार्यालय का कामकाज निपटाए और हफ्ता में 2 बार अपने समष्टि में जाके जनता से मिले, कार्यकर्ता से मिले, ये आदेश भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और विशेष मार्च महीना तक जो सिक्किम के गरीब जनता को देने वाले जो राहत और सहूलियत है, जैसे हाउस अपग्रेडेशन, ये GCI सीट्स, ये सब मार्च आगामी 2020 का मार्च तक बांटने का ऐसा बहुत सारे छलफल कल के सभा में हुआ है। STF पार्टी Meanwhile, the SKM spokesperson Jacob Khaling has welcomed the decision of the former SDF leader Ganesh Rai to form a new political party and wished him all the best. ये पार्टी के उपाध्यक्ष गणेश राय ने 2 दिन पहले ही पार्टी से रिजाइन किया है और उन्होंने घोषणा की है कि नए राजनीतिक दल, आंचलिक दल के वो गठन करेंगे। इस संबंध में सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? अभी तो हमारा संपूर्ण फोकस सरकार के काम और जनता के हित के लिए हमारा संपूर्ण समय और फोकस वहाँ पर है। इसलिए हमने अभी ये SDF पार्टी जो 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का हमें समय नहीं मिला है। फिर भी सोशल मीडिया से हमें ये प्राप्त हुआ है कि जब गणेश जी ने बोला है कि वो एक नया पार्टी लॉन्च करेंगे, हम उनको सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी हर ढेर सारे शुभकामना देते हैं उनके नया राजनीतिक जीवन के लिए। और वो जब राजनीतिक पार्टी खोल के सिक्किम में आएगा, उसके ऊपर अगर कुछ हमें कमेंट करना है, कुछ बोलना है, तो हम तभी बोलेंगे।